Hello everyone. So today we're going to discuss about the Earth's movements. So in this video you will learn about the forces that affects the Earth's surface and how it helps to create various types of landforms. So let's get started. Here you see that it is a flowchart about the forces which affects the Earth's surface. So various types of landforms are created on the Earth's surface due to some geological changes, and these changes are generally of two types: long period changes and short period changes. Long period changes occur so slow that man is unable to notice. On the other hand, short period changes take place so suddenly that these are noticed within a few seconds to few hours. Example, seismic events, volcanic eruptions, etc. So the forces which affects the crust of the earth are divided into two broad categories on the basis of their sources of origin. For example, the endogenetic force, here you see is endogenetic force and exogenetic force. So what are endogenetic force? Let's see. So endogenetic force means it refers to those internal forces which derive their strength from the Earth's interior. It means what? Endogenetic force occurs on the interior of the Earth. It affects the Earth's interior. मतलब एंडोजेनिक फोर्स आर्ट्स के इंटीरियर में affect करता है. So these are mainly the land building forces. Okay. So for example, earthquakes, volcanic eruptions, these are the examples of endogenetic force. Endogenetic processes are responsible for shaping the Earth's relief and the formation of mineral resources. So endogenetic force Earth's relief को shape करने में help करता है, new landforms create करने में help करता है. Like volcanic eruption के कारण क्या होता है? Lava flow होता है. Lava flow होने के कारण वहाँ के सॉइल को अफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया के डेकान प्लेटू में जो आपको सॉइल मिलता है या क्या होता है, मतलब ब्लैक सॉइल मिलता है. वो क्या है? मतलब अर्ली पीरियड में यहाँ पर लावा फ्लो हुआ था, इसलिए हमें अब वो ब्लैक सॉइल का कलर क्या होता है? मतलब ब्लैक होता है. देन टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण जो अर्थक्वेक देखने को मिलता है आपको, तो वहां से आपको फॉल माउंटेन्स, फोल्डिंग ये सब देखने को मिलता है. सो द एंडोजेनेटिक फोर्सेस इज कॉल्ड द लैंड बिल्डिंग फोर्सेस. सो व्हाट आर एक्सोजेनेटिक फोर्स? It refers to those forces which derive their strength from the Earth's exterior or are originated within the Earth's atmosphere. So endogenetic force में क्या था? वो Earth's interior में affect करता था. And exogenetic में क्या होता है? Earth's के exterior में affect करता है. So in the exogenetic force there are some agents which help in erosion. So exogenetic force में erosion होता है, लैंडफॉर्म को erosion करता है, और वो एजेंट है आप मतलब wind, glaciers, sea waves, running water. So the exogenetic forces are land wearing forces because they transport the materials from one place to another. They deposit the sediments to another place. So wind के कारण हमें क्या देखने को मिलता है? बारखान, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स लाइक केम, ड्रमलिन. रनिंग वाटर से हमें डेल्टा देखने को मिलता है, राइट? रिवर टेरेसेस. So these are some examples of exogenetic forces. So exogenetic forces के और भी सब कैटेगरीज है उनके, like weathering,
मास वास्टिंग. सो वेदरिंग के भी सब टाइप्स है. फॉर एग्जांपल फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग. सो इसे हम बाद में पढ़ेंगे. सो पहले हम एंडोजेनेटिक फोर्स के टाइप्स देख लेते हैं. So let's first see the diastrophic forces. So what are diastrophic forces? It refers to those forces generated by the movement of the solid material of the Earth's crust. All the processes that move, elevate or build portion of the Earth's crust come under diastrophism. So diastrophic forces are the slow movements. They occur in a slow manner, right? So for example, जो माउंटेन फॉर्म होता है, पहले जो हिमालय फॉर्म हुआ था 33 में, सेडिमेंट डिपॉजिट सालों से जमा होकर डिपॉजिट होकर देन हिमालय माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ. तो ये तो एक दिन में नहीं हुआ, हजारों साल लगे. तो कंप्रेशन के कारण हिमालय माउंटेन फॉर्म हुआ. तो ये एक एग्जांपल है डायस्ट्रोफिक फोर्सेस के. सो इसके टू टाइप्स हैं, एपिजेनेटिक फोर्सेस और ऑरिजिनेटिक फोर्सेस. एक एपिजेनेटिक और एक ऑरिजिनेटिक. सो the another one is catastrophic forces. Catastrophic force means sudden forces, जो आपको suddenly देखने को मिलता है, like volcanic eruption और earthquake. तो what are epigenetic forces? Epigenetic forces are what? It causes upliftment and subsidence of continental masses through upward and downward movement respectively. Okay, so the word epigenetic consists of two words. Epiros mean continent and genesis mean origin. So ये क्या है? एपिजेनेटिक फोर्सेस जो है वो कॉन्टिनेंट बिल्डिंग में, कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन में हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है? अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस के थ्रू. तो यहाँ पर सिर्फ हमें अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है. तो अपवर्ड मूवमेंट, लाइक अपवर्ड मूवमेंट के कारण ये एग्जांपल है एक अपवर्ड मूवमेंट का, और ये डाउनवर्ड मूवमेंट का एग्जांपल है. ओके, तो जो हमें रेस्ड बीचेस देखने को मिलता है कहाँ पे? काठियावाड़ में, नेल्लोर में, तिरुनेलवेली में. तो ये सब एपिजेनेटिक फोर्सेस के एग्जाम्पल है. हमें रान ऑफ कच्छ में जो अर्थक्वेक देखने को मिला था 1819 में, यह भी एक एपिजेनेटिक फोर्सेस के एग्जाम्पल है. सो द नेक्स्ट इज ऑरिजिनेटिक फोर्स. ऑरिजिनेटिक, द वर्ड ऑरिजिनेटिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ओरोस meaning thereby mountain and genesis means origin. सो एपिजेनेटिक में क्या था? वो कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस थे, और ऑरिजिनेटिक फोर्सेस क्या है? ये माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस है. तो इसका डिफरेंस याद रखना. दिस मोमेंट्स आर वर्किंग इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर एंड देयरफॉर कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्सेस. सो माउंटेन, एक माउंटेन कैसे फॉर्म होता है? जब वो कॉम्प्रेस, मतलब दो लैंडफॉर्म कॉम्प्रेस करता है, मतलब फेस टू फेस मूव होता है, यहाँ से भी एंड यहाँ से भी. ये कंप्रेशनल फोर्स के कारण माउंटेन्स फॉर्म होता है. और एक तरह से माउंटेन फॉर्म होता है जो अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे. अगर ये फेस टू फेस मूव करेगा तो ये कॉम्प्रेशनल फोर्स मतलब फॉल माउंटेन्स क्रिएट करेगा, और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म करेगा. तो ये आपको दिख रहा होगा. इसके टू टाइप्स है. ऑरिजिनेटिक फोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कंप्रेशनल फोर्सेस और टेंशनल फोर्सेस. कंप्रेशनल मीन्स व्हाट? फेस टू फेस मूव करना, और टेंशनल मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में. कंप्रेशनल के कारण
फॉल माउंटेन्स क्रिएट होता है, फॉल वगैरह क्रिएट होता है, और टेंशनल के कारण फॉल्टिंग देखने को मिलता है। सो इससे भी पढ़ लेते हैं व्हाट आर द कंप्रेशनल फोर्सेस। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये फेस टू फेस मूव कर रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको माउंटेन्स फॉर्म हो रहा है, माउंटेन रेंज। सो अगर आप अपने आप से भी करके देख सकते हैं। एक पेपर लीजिए और इसे फोल्ड कर दीजिए, आपको क्या दिखेगा, जो मिडिल पोर्शन है पेपर का वो अपलिफ्ट हो जाएगा। ये एक पेपर है ना, ये एक पेपर है, तो इसे ये एक पेपर है, तो अगर इसे आप फोल्ड कर दोगे तो ये ऐसे एक शेप लेगा। तो ये मिडिल पोर्शन क्या हुआ, फोल्ड कर गया, तो ये फॉल माउंटेन्स। ओके, तो ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण हो रहा है, मतलब जो ज्यादा हैवी है ये नीचे चला गया और लाइट पार्ट ऊपर रह गया, तो कंप्रेशन हुआ, इसलिए यहाँ पर फॉल माउंटेन्स हुआ। इन कंप्रेशनल फोर्सेस द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वर्क फेस टू फेस, मैंने पहले ही बताया, एंड क्रस्टल रॉक्स आर बेंट, सो causes crustal bending, crustal warping. So most of the world's main mountain systems such as the Himalayas, Rockies, then Andes, Alps, all are the types of what? Fold mountains. They are generated through folding. Okay. So the next is, so यहाँ पे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा ये जियोसिंक्लाइन है। ओके, यहाँ पर सेडिमेंट जमा हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर फॉल माउंटेन्स क्रिएट हो जाएगा। ये जो है ये फॉल माउंटेन्स क्रिएट हो जाएगा, किसके कारण, किस फोर्स के कारण, कंप्रेशनल फोर्स। ओके, then the last one is tensional forces. Tensional forces means they work horizontally but in opposite direction. Reef valleys, block mountains are the examples of faulting. So the Vindhya and Satpura are examples of faulting. Vindhya and Satpura mountains. Okay. The lowering of rock strata between two roughly parallel faults creates a reef valley. Nile Valley, the Narmada Valley, Tapti Valley are the example of reef valleys. So मैंने बताया था टेंशन मतलब क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होना, और इसके कारण क्या फॉर्म होता है, फॉल्टिंग फॉर्म होता है, ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ वैलीज, ये सब। सो ब्लॉक माउंटेन्स में दो टर्म आपको देखने को मिलेगा, एक ग्रेबन और एक हॉर्स्ट। ग्रेबन क्या है, ग्रेबन आर रिफ वैलीज विच स्टीप पैरेलल walls along the forest, while horst is an uplifted landmass. Okay, so आपको डायग्राम में दिखाता हूँ ये। सो हॉर्स्ट जो है वो अपलिफ्टेड लैंडमास है। अपलिफ्टेड लैंडमास को जो उठा हुआ भाग है इसको हॉर्स्ट कहते हैं, ये सब हॉर्स्ट। और जो नीचे है डाउन पार्ट को हम ग्रेबन कहते हैं, इसे हॉर्स्ट और इसे ग्रेबन। और ये जो वैली क्रिएट हुआ जो आपको नर्मदा ताप्ती में मिलेगा, इसे हम क्या कहते हैं, रिफ वैली। ओके।